हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here political science class 12 CBSE NCERT. There is the most important question here. The question on your screen, question here: regional demand for a different part of India exemplify the principle of unity and diversity. Do you agree? Support your answer with the appreciate agreement. You know that question is very interesting here. Regional demands from a different part of India exemplify their principle of unity and diversity. Do you agree? Yes, I agree for these following reasons here. First reason, original aspiration are part of democratic politics. Religion's demand have to be addressed in the democratic way. That's important. The regional aspiration are part of democratic politics. Regional demands have to be addressed in the democratic way. And when we try to be a suppress regional aspiration will be lead to be resistance and secession. That's important. It is not India but is other small country like the UK. There are a regional aspiration in the Scotland. That's important here. It is not India but other smaller country like the UK. There is a regional aspiration is Scotland. The best way to respond to a regional aspiration it is thought democratic as a negotiations. That's important. And the next year, power sharing. Power sharing regional parties should be allowed to share power at the regional level, at the state as well as a center, in order to be a more representative. That's important. The power sharing regional parties should be allowed to be share the power at the regional level, at a state as well as the center, in order to be more representative. That's important. The frustrations of the makers of our constitution allow to the federal characteristic to be provide a flexibility and a special provision to accommodate a diversity like a sixth schedule of the constitution. Regional imbalance can be accommodated without beginning or discriminate in any way here. That's important constitution here. And therefore regional aspirations are not encouraged to be exposed or separatism. And that's the India is a regionalism is accepted as a part of democratic political. That's important. The India is regionalism is accepted to the part of democratic politics. That's important. यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय मांगों में विविधता के साथ एकता के सिद्धांत का भी उदाहरण है। देखिए, विविधता के साथ एकता का भी उदाहरण है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? उचित तर्क के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की ज़रूरत है कि भारत विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय मांगों की बहुत विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नता के साथ एकता का भी सिद्धांत है। तो किस इस बात से आप सहमत हैं? तो देखा जाए तो ये बात तो सच है। ये बात तो सच है कि कहते हैं भारत विभिन्नताओं का देश होने के पश्चात भी एकता का सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती है लोकतंत्र राजनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय मांगों को लोकतंत्र तरीके से संबोधित भी किया जाना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनता है। जब हम दबाने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रतिरोध और अलग गांव को जन्म देगी। तो ये बात तो सच है। जब हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे
तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रतिरोध और लगाव को जो है जन्म देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भारत में नहीं बल्कि यूके जैसे अन्य छोटे देशों में भी स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं रही है। देखा जाए तो ये भारत ही देश नहीं है जहां पर जो है इस तरह की आकांक्षाएं रही है। कहते छोटे देशों में जैसे स्कॉटलैंड भी है, वहां पर भी इसी तरह की आकांक्षाएं देखने को हमें मिला है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर प्रतिक्रियाएं देने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकतांत्रिक वार्ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना, वार्ता करना, ये काफ़ी महत्व रखता है। वार्ता का मतलब होता है कि बात विचार जो है कर सकते हो आप। देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि सत्ता की साझेदारी। कहते हैं ऐसे जगह पर सत्ता की साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। क्षेत्रीय दलों को अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र में भी क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में जो है सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनाता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकता अनेकता में भी एकता की जो है विचारधारा रखी जा सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे संविधान की निर्माताओं की दूरदर्शिता। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारे संविधान कि जिन्होंने बनाया वो काफ़ी जो थे दूरदर्शिता थी, क्योंकि उन्होंने संघीय विशेषताओं के संविधान की छठी अनुसूचित की तरह विविधताओं को समायोजित करने के लिए लचीलापन और विशेष प्रावधान प्रदान करने की अनुमति देती है, और क्षेत्रीय असंतुलन को किसी भी तरह से भेदभाव किए बिना ही समाज जो है समायोजित किया जा सकता है। तो देखा जाए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो काफ़ी दूरदर्शी थे, उनको पता था कि भारत जैसे विभिन्नताओं वाला देश में एकता स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने भारत को जो है देखा जाए तो सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जहां पर प्रत्येक नागरिक रहने की पूरी अनुमति देती है, हर तरह के धर्म अपनाने की अनुमति देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इसलिए देखा जाए तो अलगवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अलगवाद को बढ़ावा देने के लिए हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। और इस प्रकार भारत में क्षेत्रवाद को लोकतंत्र राजनीति के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखा जाए तो भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत में क्षेत्रवाद को लोकतंत्र राजनीति के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे बहुत कुछ है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है, और ये भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए कि शेयर ही केयर है। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें। आप सोचिएगा कि मैं सेव क्यों करूं, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों तिरपान स्टडी सेंटर यहीं नहीं रुका है, यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं, सारे चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत, किताबों के अंतर्गत, जो बुक आप फॉलो करते हो उसके अंतर्गत सारे वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।